इसलिए आइए हज़रात, मैं हमारे सबसे अज़ीज़ महबूब कारी तैयब जमाल यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ तलावत कलाम मजीद के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, ये बहुत खूबसूरत मजलिस है। जिन हज़रात ने सजाई है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक एक चीज़ को पिरोया है बड़े सलीक़े से, बड़े मुंतज़िम लोग हैं इंतज़ामिया वाले। एक इंतज़ामिया होती है, एक मुंतज़िम होता है। हर चीज़ को सलीक़े से किया है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। नाम तो मैं किसी का नहीं जानता, और तमाम रुफ़क़ा को, आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुर्रहमान साजिदुल आज़मी साहब दामद बरकातुहुम जैसी शख्सियत, मैं ये सोच रहा था कि कहाँ से पढ़ूँ। ये इल्म व अदब का गहवारा है। यहाँ से बड़े बड़े इल्म वाले पैदा हुए हैं इस सरज़मीन से, और इस सरज़मीन के रहने वाले हमारे नाज़िम जलसा हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुर्रहमान साजिदुल आज़मी साहब, कि जिनकी निज़ामत का पूरे हिंदुस्तान में कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला ने उनको इतने फ़नून दिए हैं कि जिनकी कोई तादाद नहीं। इनकी कदर हम लोग नहीं कर पाते। हम इनके सीधे साधे अंदाज को देखकर समझते हैं, मगर ये जितने बड़े आदमी हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे मोहतरम जनाब क़ारी उबैदुर रहमान साहब इससे पहले भी मुझे दावत दी थी। अल्लाह ताला सभी को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत करता हूँ। आप पूरे अदब के साथ, पूरे सुकून के साथ समाअत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। वज़रब लना मथला वनसिय ख़ल्क़ह। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम। क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह वहुव बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम।
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فإذا أنتم منه توقدون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها
وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان.
ألا تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. मौलाना कारी तैयब जमाल मज़ाहिरी सहारनपुरी ने कुरान मुक़द्दस की तलावत कीजिए। आपने कुछ समझा क्या कहा गया? आपने कुछ समझा कुरान मुक़द्दस ने क्या आपसे खिताब किया है? ये तो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह तो अपने कलाम के साथ समझाने के लिए नबी को भेजता है। और सच बात यह है कि हम तो एक औरत के कलाम को भी नहीं समझ सकते। ये तो अहकमुल हाकिमीन का कलाम है, कलामुल मुलूक, मुलूकुल कलाम कि बादशाहों का कलाम, कलामों का बादशाह हुआ करता है। हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब नव्वरल्लाह मरक़दहू ने इमदादुल बारी में अपने शेख हज़रत शेख सहारनपुरी के हवाले से एक वाक़या नक़ल किया है कि हारून रशीद के ज़माने में कत्ल हो गया और कातिल का पता नहीं चलता था। अब तो कत्ल की बात यह है कि इतना कत्ल होता है और क़यामत की अलामतों में से है कि कातिल को पता नहीं कि मैंने क्यों कत्ल किया और मकतूल को भी मालूम नहीं कि मुझे क्यों कत्ल किया गया। तो कातिल का नहीं पता चल रहा है, सारी इंटेलिजेंस और सारी CID फेल हो गई। तो हारून रशीद ने कहा मैं इसका पता लगाऊंगा। हारून रशीद इसका पता लगाने के लिए निकला तो एक घर के पास पहुंचा जहां 2-3 औरतें बैठी हुई बातें कर रही थीं। एक ने कहा कि वो चला, दूसरी ने कहा वो नहीं, तीसरी ने कहा वो चला गया। हारून रशीद ने समझा कि कातिल कहीं यही था और वो मुझे देख करके चला गया। तो औरतों ने उसी की कहानी नकल की है, दीवार मकान पे निशान लगा दिया और सुबह को पुलिस वालों को भेज दिया।
अब सुबह को पुलिस वाले जो है इन औरतों को गिरफ्तार करके दरबार में ले आए, तो हारून रशीद ने पूछा कि भाई वो रात की कहानी क्या है। एक ने कहा ये भी वही है, दूसरे ने कहा वो होते तो वो होती, तीसरी ने कहा कि वो नहीं है तो वो जरूर है। अभी तो एक ही मसला जो है हल नहीं हुआ था, दूसरा मसला और फंस गया। उन्होंने कहा भाई ये बताओ क्या है ये। कहने लगे कि हुजूर इस मसले को जब बताया जाएगा, अब यकीन से बताइए आपने कुछ समझा कि इन औरतों ने क्या कहा? नहीं समझ में आएगा। तो बात औरतों की थी, लेकिन नहीं समझ में आएगी तो हकमुल हाकिमीन की बात कैसे समझ में आ जाएगी। तो बादशाह ने कहा मुझे इसकी कहानी तो सुनाओ, ये वो मैं कुछ समझ नहीं आया। कहने लगी जी हुजूर जान बख्शी का वादा करे तो फिर आपको बताया जाए। हारून रशीद ने कहा भाई चलो जान बख्शी का वादा है मेरी तरफ से, और वादा वफा करना मोमिन की अलामत है। इसी पे शेख ने ये वाक़या इमदादुल बारी में अपने शेख के हवाले से नकल किया है। तो कहा हुजूर जब आप हमारे दरवाजे पे और हमारे मकान पे पहुंचे तो हमारा चिराग बुझ रहा था। तो एक ने कहा वो चला, यानी ये बुझ रहा है। तो दूसरी ने कहा कि वो नहीं है, यानी इसमें तेल नहीं है। इतना कहना था वो बुझ गया। तो तीसरी ने कहा वो चला भी गया। बताइए इतनी सी बात पे आपने हमें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके दरबार में ले आए। अब पूछते हैं कि भाई रात की बात। तो हम में से एक ने कहा कि ये भी वही है, यानी बैल है बैल। तो दूसरी ने कहा वो होते तो वो होते, यानी अगर बैल होते तो सींग होती। तो तीसरी ने कहा कि वो नहीं है तो वो जरूर है, यानी अगर बैल नहीं है तो गधे जरूर है। मालूम हुआ कि गधा भी और बैल भी सब कुछ बना दिया गया, लेकिन हारून रशीद ने अपने वादे को निभाया।